Water is life. We all need clean water to live, to grow crops, to thrive. But there just isn't enough water or land to feed our hungry. Water is life. Unless we change the way we grow food, to grow crops. That's why millions of farmers are turning to Jain. But there just isn't enough water or land to feed our hungry. Water is life. Unless we change the way we grow food, is totally integrated. That's why millions of farmers are turning totally innovative. But there just isn't enough water or land. Farmers helping farmers. The company logo reflects our holistic cycle of shared values. The sun, source of free renewable energy. Enhanced crops thanks to tissue culture plants and improved inputs. Water used sparingly and intelligently. Source of the land, renewable protected and used wisely to deliver crops thanks to tissue culture plants. Jain has become a worldwide force in irrigation technology and intelligent agri-value chain of the land, renewable energy source wisely to deliver crops thanks to tissue culture plants. Jain has become a worldwide force headquartered in Jalgaon, India, and intelligent agri-value chain of the land, renewable energy started with 7,000 rupees, has become $1 billion organization. The world leader in agro-technology, Jain starts with detailed 3D designs and provides the widest range of irrigation products and solutions. In this remote part of the world where there is no electricity, Jain's solar-powered pumps provide on-demand irrigation through a variety of Jain pipes to irrigate the roots of plants produced in Jain's own fields and greenhouses. We pioneered the use of drip tapes for row crops with the innovative Chapin tape. Thanks to our micro-irrigation systems and close work with farmers, we help them grow better produce that sells for more. We have even created a breakthrough technique to grow rice with drip irrigation. The result, better yields and better quality. Israel is known for bringing advanced irrigation to the world, and Nandan Jain led the way with integral drip line and sprinklers. Jain, total integration. Israel is known for bringing advanced irrigation to the world, whether you Nandan Jain led the way with integral drip line and sprinklers. No one offers a greater variety of integration. Israel is known for bringing advanced irrigation to the world, with Nandan Jain led the way with integral drip line and sprinklers. 10,500 variety integration. Israel is total advanced irrigation to the world. 30 production lines led the way. Sales in 116 countries. 10,700 integration. Israel is total advanced irrigation. 30 production lines led the way. Sales in 116 countries. 10,700 integration. Israel is total advanced irrigation. 30 production lines with annual revenue exceeding $1 billion. And revenue growth of 1,400% in just 10 years. Why is Jain different? We are a global company that built our business on results, trust, constant innovation, and total integration. We are financially strong, enjoying steady, sustainable growth. We believe that you need to leave the world a better place than you found it. We believe in sustainability. We invest heavily in our people, our partners, and critically, our farmers. Food and energy security is tied to water security. But with today's technology, no one should ever go hungry. And every farmer, no matter how small or large, can produce more crop per drop. There is no need to fight wars over water, because if used wisely, we can make it last. Water is life, and at Jain, we are dedicated to improving life everywhere for everyone, now and in the future. Namaskar farmer friends from Jain Irrigation. We are very glad and joyous today to launch another product in our filtration range. I am sure this product will also help you to transform the way you do your filtration. Keeping in line with our culture and tradition of continuously innovating so that we can help you to change the way you do agriculture for betterment. Here it is, an ultimate sand separator called Groomer. I am sure you would be very happy to have this product. Thank you.
Jain Gumar. Raw water carrying sand and silt enters into the filter through the inlet pipe. It then passes through a patented vortex creator, which creates a smooth spiral vortex flow to push the sand and silt particles towards the outer wall of the filter. Due to the spiral nature of the flow, sand and silt particles traverses downwards to get trapped into the collection chamber. Debris collected in the collection chamber can be easily flushed out. Clearer water then passes to the system through the outlet pipe. Let your water be cleaned using superior technology from Jain Irrigation Systems Limited. Happy filtering! उपस्थित सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। उपस्थित सभी जैन इरिगेशन के वितरक बंधुओं एवं जैन इरिगेशन के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक स्वागत और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग ये जैन घूमर ये जो उत्पादन है इसके तैयार करने में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हो। पिछले 2 सालों से आपकी तरफ से आए हुए सुझाव एवं जानकारी की वजह से ही आज हम ये बहुत अच्छा उत्पादन आपके सामने ला सकते हैं। आप लोगों ने बार बार हमें बाकी जो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, इसमें मेटल है, प्लास्टिक के हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, इसमें किसान भाइयों को क्या दिक्कतें आती है, किसान भाई ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये सारी जो जानकारी हम तक पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप जैन घूमर ये एक अनोखा उत्पादन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज मेरा नाम अभिजीत जोशी है और मैं आपको जैन घूमर की जो सारी तकनीकी विशेषताएं हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैन घूमर के बारे में बात करने से पहले मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमरी फिल्टर क्या होता है। जैन घूमर एक प्राइमरी फिल्टर है और प्राइमरी फिल्टर का काम क्या होता है। प्राइमरी फिल्टर जो पंप के बाद में आने वाला पहला फिल्टर होता है, इसका काम ये होता है कि उसके बाद में जो सेकेंडरी फिल्टर्स होते हैं जिसमें सैंड फिल्टर होता है, डिस्क फिल्टर होता है, स्क्रीन फिल्टर होता है, इनका काम कम करना, इनका लोड कम करना। मतलब क्या कि पानी में आने वाली जो इम्प्योरिटीज़ है, जो जिसमें रेत है या मिट्टी है, ये सारी प्राइमरी फिल्टर जितनी हो सके उतनी निकाल देता है ताकि सेकेंडरी फिल्टर को काम कम करना पड़े। तो जैन घूमर एक प्राइमरी फिल्टर है जिसकी कार्यक्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कार्यक्षमता बहुत अच्छी क्यों है, इसका डिज़ाइन विशेषताएं क्या है, ये अभी मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों जैन घूमर के बारे में जानकारी लेते हैं। जैन घूमर किस तरह से काम करता है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये आपको किस तरह से लगाना चाहिए, इसके असेंबली किस तरह से होती है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली गुण विशेषता है जैन घूमर की ये है और सबसे महत्वपूर्ण गुण विशेषता है जैन घूमर की ये है कि ये एक पैटेंटेड डिज़ाइन वाला फिल्टर है। तो ये पैटेंटेड डिज़ाइन क्या है, इसमें क्या ऐसी अनोखी बात है जिसकी वजह से ये पैटेंट हो सका है इसका, तो ये जान लेते हैं। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि बाकी सारे जो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर्स है वो किस तरह से काम करते हैं और जैन घूमर में हमने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से ये दिक्कतें जो आती है उसमें ये हमने दूर की। तो बाकी हाइड्रोसाइक्लोन, कोई भी आप हाइड्रोसाइक्लोन अगर आपने देखा होगा, चाहे जैन इरिगेशन का हो या बाकी किसी और कंपनी का हो, मेटल का हो या प्लास्टिक का हो, ये लगभग सारे हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में पानी जो अंदर आता है ये टेंजेंशियली साइड से अंदर आता है, टेंजेंशियली अंदर आता है, अंदर एक घुमाव तैयार करता है और पानी ये जो भंवर तैयार जो होता है अंदर, ये भंवर की वजह से जिसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है जो रेत के कण या मिट्टी के कण जो पानी के अंदर होते हैं उनके ऊपर, और जिसकी वजह से भंवर के जो केंद्र है वहाँ से ये मिट्टी के कण, रेत के कण दूर जाना शुरू करते हैं। दूर कहाँ पर जाते हैं, तो जो फिल्टर की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसकी तरफ। लेकिन ये जब ऐसा पानी का जो मिट्टी का कण जो है ये जब दूर जा रहा है, ये होते वक्त पानी के अंदर जो टर्बुलेंस है, जो पानी साइड से अंदर आता है जिसकी वजह से एक टर्बुलेंट फ्लो तैयार होता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, तकनीकी वो शब्द है। तो दोस्तों एक आसान तरीके में मैं बताना चाहूँगा कि अगर 4 लेन का हाईवे है, उसमें गाड़ियाँ जा रही है और अचानक सारी गाड़ियाँ एक दूसरे की लेन को क्रॉस करते हुए एक दूसरे में घुसने लगे तो एक्सीडेंट होगा। तो इसी तरह से ये जो उथल पुथल होगी इसे टर्बुलेंस कहा जाता है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो में पानी की जो धारा है ये एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटते हुए उथल पुथल करके आगे जाती है। ये जो उथल पुथल वाला जो फ्लो है, ये जो टर्बुलेंट फ्लो है, ये क्या करता है कि जो रेत का कण, मिट्टी के कण जो केंद्र से दूर जा रहे हैं,
दीवार की तरफ उनको अंदर पुश कर देता है, अंदर ढकेल देता है सडनली उनको, जब टर्बुलेंस आ जाता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से फिल्टर की कार्यक्षमता आपको थोड़ी कम मिलती है। अब जैन घूमर में हमने क्या किया है, तो जैन घूमर में आप लोग ये प्रेजेंटेशन के स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके अंदर हमने एक वोर्टेक्स जनरेटर नाम का एक संयंत्र यहाँ पर बिठा दिया है, एक प्लेट हमने बिठाई है, जिसकी वजह से पानी जब अंदर आता है तो जैन घूमर में पानी सेंटर से अंदर आता है और उसको नीचे लाया जाता है, और ये जो कंपार्टमेंट्स है जो वोर्टेक्स जनरेटर है उसमें से जब पानी जाता है तो इसके अंदर का टर्बुलेंस निकाल दिया जाता है, और जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द फ्लो, यानी पानी की धाराओं को हम उनकी लेन में डालते हैं। और जैसे 4 लेन हाईवे पे गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चले तो शांतिपूर्ण चलेंगी, वैसे ही ये पानी की धाराएं अपनी अपनी लेन में जाने की वजह से इसमें एक स्मूथ वोर्टेक्स तैयार होता है, स्मूथ वोर्टेक्स तैयार होता है। ये जो स्मूथनेस है वोर्टेक्स का, जिसकी वजह से जो अंदर भंवर तैयार होता है और जो रेत के कण बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको धक्का नहीं पहुंचता, वो अंदर वापस धकेले नहीं जाते, और आपको कार्यक्षमता घूमर की अच्छी मिलती है। लगभग 97% से ऊपर रेत के कण इसमें से निकालने की ये कार्यक्षमता रखता है। इसका मैं ये जो फिल्टर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उस वक्त इसको एक फ्लो सिमुलेशन किया जाता है, यानी ये प्रोडक्ट तैयार होने से पहले ही हम लोग इसको कंप्यूटर में तैयार करते हैं और उसको वैसी कंडीशन देते हैं कि पानी अंदर कैसे जाएगा, कैसे घूमेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसको हम पूरा स्टडी करते हैं। तो आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो स्मूथ स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो, सर्पिल आकार जो फ्लो है, ये किस तरह से तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शांति से स्मूथ स्पाइरल वोर्टेक्स तैयार होता है, जिसकी वजह से रेत के कण आसानी से साइड वॉल की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ स्पाइरल होने की वजह से नीचे की तरफ धकेले जाते हैं और नीचे फिर कलेक्शन चैम्बर में जमा हो जाते हैं। तो ये दोस्तों स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो। अब जैन घूमर में दोस्तों 97% की इफिशिएंसी इसमें आपको मिलती है। मतलब क्या होता है कि रेत जितनी भी मात्रा में आपके पानी में आ रही है उसमें से लगभग 97% की रेत ये निकालने की क्षमता रखता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा वीडियो द्वारा आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, इसके अंदर जो मैंने बोला था कि सर्पिल आकार स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो किस तरह से तैयार होता है, तो ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट फिल्टर में कि ये पानी जब अंदर आता है और जब रेत को लेके आता है तो ये जो स्पाइरल वोर्टेक्स तैयार हुआ है, अब इसके अंदर हम रेत डालेंगे। हमने बहुत बड़ी मात्रा में रेत ली और ये रेत सारी वेंचुरी द्वारा ये फिल्टर के अंदर डाली। हम ये देखना चाहते थे कि सारी की सारी रेत अंदर जमा हो जाती है या कुछ बाहर सिस्टम की तरफ भी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी रेत है ये हम अंदर डाल रहे हैं और उसी वक्त आउटलेट की तरफ से भी पानी का सैंपल मैं लेने जा रहा हूँ, ताकि पानी के सैंपल में रेत अगर है तो हमको दिख जाए। तो ये देखिए, जब रेत अंदर जा रही है, रेत किस तरह से नीचे बैठती है आप देख सकते हैं। और ये जो पानी मैंने जमा किया है ये बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन क्लियर वाटर था। ये पानी बिल्कुल क्लीन था, उसके अंदर रेत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल साफ। तो पूरी की पूरी रेत गई कहाँ? तो पूरी की पूरी रेत पूरी नीचे जमा हो गई है। जो नीचे जो कलेक्शन चैम्बर है, जो नीले आकार का जो डमरू है, वहाँ पर ये सारी की सारी रेत जमा हो गई है। तो ये उसकी कार्यक्षमता, ये बहुत ही बड़ी गुण विशेषता है जैन घूमर की। 97% से भी ज़्यादा मात्रा की रेत ये निकाल सकता है। तो आपके जो सेकेंडरी फिल्टर है, दूसरे फिल्टर है, इनका काम ये बहुत ही कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम का लाइफ बढ़ता है। अब देखिए, ये जो रेत जो जमा हो गई है नीचे, ये वहाँ से निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी की पूरी रेत अंदर से निकल रही है बाहर, और जितनी हमने डाली थी लगभग उतनी ही मात्रा में रेत पूरी की पूरी वहां पर जमा होके वापस निकली। ये बिल्कुल वन शॉट में एक पिक्चराइज किया गया वीडियो है, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी कट शॉट्स नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि पूरी पूरी रेत यहां पर जमा हो गई है। आगे की गुण विशेषता है दोस्तों ये है कि ये एक रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है इसका। ये बहुत ही स्लिम दिखता है और कहते हैं कि स्लिम इज ब्यूटीफुल, यू नो, जो दुबली पतली लड़की होती है अच्छी दिखती है, लेकिन ये स्लिम है, इसका मतलब ये जैन घूमर नाजुक नहीं है, ये रोबस्ट है। और ये रोबस्ट ताकतवान कैसे बना? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है
ये है एक हाई ग्रेड का पॉलीथिलीन, इसमें प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है। और उसके बाद में इसमें हमने लॉन्ग स्ट्रैंड ग्लास के फाइबर्स मतलब कांच के धागे इसमें मिलाए जाते हैं। और ये कांच की धागों की वजह से ये जो मिक्स होता है प्लास्टिक के अंदर कांच के धागे, तो इसको पूरा एक रेनफोर्समेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका आगे एक और जो गुण विशेषता है ये है कि इसकी वजह से ये प्लास्टिक के धागे कांच के धागों की वजह से इसको बेस्ट इन क्लास एब्रेजन रेजिस्टेंस मिलता है। अब एब्रेजन मतलब क्या है? एब्रेजन मतलब घिसाव। जब पूरी की पूरी रेत जब नीचे आती है तो नीचे की तरफ सारी रेत एक साथ जब जमा होती है ना, तो वो घर्षण करने लगती है, फिल्टर को घिसने लगती है। तो ये घिसाव की वजह से डैमेज ना हो फिल्टर, ये इसे कहते हैं एब्रेजन रेजिस्टेंस। तो ये पहले तो फिल्टर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जैन घूमर। ये देखिए इसके अंदर जब रेत अंदर आती है, हमने इसमें अभी वापस एक बार रेत डाल के दिखाएंगे आपको। और रेत का कंजेशन किस तरह से होता है, रेत ये पूरी नीचे यहाँ के जमा होती है। ये जो पॉइंट होता है इसका अपेक्स कहा जाता है, ये अपेक्स के पास रेत जमा हो जाती है। अब देखिए रेत किस तरह से बाहर की तरफ जाती है और नीचे नीचे जाती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका फंक्शन ये आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी रेत बाहर की तरफ गई और ये नीचे की तरफ जो कंजेशन होता है, जो पूरा डेंजरस पॉइंट होता है कोई भी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के लिए, इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें से ये रेत कंजेशन ही ना करे, पूरी की पूरी नीचे जाए। मटेरियल की क्वालिटी ऐसी है कि जिसमें एब्रेजन रेजिस्टेंस यानी घिसाव इसमें कम से कम होता है। तो ये जो डिज़ाइन है इसका ऑप्टिमाइज डिज़ाइन है, जिसकी वजह से इसमें घर्षण कम होता है। और इसका वॉल थिकनेस जो चौड़ाई है यहाँ पर मटेरियल की, ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी इसके ऊपर घर्षण का परिणाम नहीं होता। और उसके बाद में इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया है ग्लास फाइबर्स की वजह से इसका एब्रेजन रेजिस्टेंस घर्षण का प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये विशेषता इसकी है, इसमें एब्रेजन यानी इसका मतलब क्या है कि ये फिल्टर घिस के फट नहीं जाने वाला, ये फिल्टर की लाइफ आपको ज़्यादा मिलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों रेगुलर जो मेटल हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार इसमें किसान भाई उसको टाइम पे साफ नहीं करते या उसको प्रॉपर केयर नहीं किया जाता, तो वो करोड़ हो जाता है, उसको जंग लग जाती है। लेकिन ये जैन घूमर पूरी तरह से प्लास्टिक का होने की वजह से इसमें करोजन या जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं आता। इसका पूरा ऊपर का बॉडी प्लास्टिक का है, क्लैम्प प्लास्टिक का है, उसका नीचे वाला जो विक्टोलिक का इजी फिक्स क्लैम्प है वो भी प्लास्टिक का है, नीचे का कलेक्शन चेंबर भी प्लास्टिक का है, जिसकी वजह से इसमें जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये करोजन फ्री आपको है, इसकी वजह से आपको इसका लाइफ बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर कलेक्शन चेंबर, जहाँ पर मिट्टी या रेत जमा हो जाती है, ये जो कलेक्शन चेंबर है इसका भी डिज़ाइन आप देखेंगे कि बाकी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में एक आड़ा पाइप जैसा होता है, इसमें हमने एक अंडाकृति एक ओवल शेप्ड कलेक्शन चेंबर तैयार किया है। ये 10 लीटर यानी बहुत बड़ी कैपेसिटी का ये कलेक्शन चेंबर है, 10 लीटर का, यानी 10 लीटर तक की रेत ये समा सकता है। और ये वर्टिकल या ओवल शेप होने की वजह से इसमें जो घुमाव जो तैयार होता है, ये घुमाव का इम्पैक्ट कम हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि नहीं तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में अगर छोटा पाइप है नीचे कलेक्शन चेंबर में, तो ऊपर का जो घुमा है वो नीचे के पाइप तक पहुंच जाता है और वो नीचे की रेत उठाना शुरू कर देता है। तो इसमें ऐसा होने के कोई चांसेस नहीं है। ये डीप बड़ा लंबा कलेक्शन चेंबर है और इसका जो ड्रेन है ये बिल्कुल बॉटम में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जब आप उसको खोल के साफ करोगे तो सारी की सारी रेत जो है ये पूरी की पूरी मात्रा में ये बाहर निकाल सकता है। ये इसका बड़ा कलेक्शन चेंबर, ये एक बड़ी गुण विशेषता है। दूसरा, ये कलेक्शन चेंबर फ्लश करने के लिए बहुत ही आसान है। ये मैं आपको फ्लश करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सिर्फ एक ट्यूब लगाई है और उसको आप खोलो, साफ निकल जाएगा। रेगुलर हाइड्रोसाइक्लोन में बहुत बार क्या होता है कि कोई वॉल वगैरह लगाया जाता है। रेगुलर हाइड्रोसाइक्लोन में जो वॉल लगाया जाता है तो बहुत बार क्या होता है कि मिट्टी की वजह से, रेत की वजह से ये वॉल जो है ये खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हमने इसमें सिर्फ एक सिंपल ट्यूब रखी है। ट्यूब को खोलो, सारी की सारी रेत बाहर निकल जाएंगी, ट्यूब को बंद कर दो, बंद हो जाएगा। सिंपल टेक्नोलॉजी है, फ्लश करने के लिए ईजी है, मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ईजी है। उसके बाद में इसका असेंबली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। असेंबली के लिए कितना आसान है ये पूरा प्लास्टिक का है। इसमें सिर्फ 2 क्लैंप है, एक क्लैंप निकालो
पूरा फिल्टर डिसअसेंबल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपको अगर कोई मेंटेनेंस करना है, ट्रबल शूटिंग करना है, और लगाने के लिए भी बहुत आसान है। लगाओ, क्लैंप टाइट करो, हो गया लगाना। नीचे का कलेक्शन चेंबर है, अगर किसी कारण से आपने फिल्टर को साफ नहीं किया है और नीचे पूरी मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसे जम गई है, तो साफ करने के लिए अगर आपने खोला है तो उसको लगाना भी बहुत आसान है। उसको एक इजी फिक्स क्लैंप करके क्लैंप है, सिर्फ 2 नट बोल्ट्स है, उनको खोलो, साफ निकालो, साफ करो, वापस लगाओ। तो लगाने के लिए और असेंबली करने के लिए, डिसअसेंबली करने के लिए बहुत ही आसान ऐसा ये फिल्टर है जैन घूमर। और ये सारी गुण विशेषताओं की वजह से दोस्तों जैन घूमर का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सेकेंडरी फिल्टर का लोड, जैसे मैंने आपको कहा कि सेकेंडरी फिल्टर का काम ये कम कर रहा है, जिसकी वजह से ड्रिप सिस्टम का जो चोकिंग का जो प्रॉब्लम है, जो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मिट्टी या रेत अंदर जा रही है और अगर वो ड्रिपर में बैठती है तो ये जो मिट्टी है या सिलिका जो है रेत में होती है, ये एसिड से पिघलती नहीं है, तो एसिड ट्रीटमेंट करके भी बहुत बार फायदा नहीं होता अगर मिट्टी की वजह से चोकिंग है तो ये मिट्टी या रेत ये फिल्टर पूरी तरह से निकाल देता है, जिसकी वजह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो लाइफ है आपको, या स्प्रिंकलर में भी बहुत बार क्या होता है कि अगर रेत के कण अंदर जा रहे हैं और हाई वेलोसिटी से जब ज़्यादा गति में जब नोजल से, फुहारे के नोजल से वो निकलते हैं तो ये नोजल को घिस देते हैं, और जब ये नोजल घिस जाता है तो आपको जो यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, फ्लो चेंज हो जाता है। तो ये रेत वहीं पर अगर निकल गई तो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम का भी लाइफ आपको मिलता है। तो मतलब क्या कि ड्रिप और आपके स्प्रिंकलर सिस्टम, ये फुहारा पद्धति की जो सिस्टम है आपकी, उसका आयुष्य, उसका लाइफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है अगर आप जैन घूमर इस्तेमाल करते हो तो। आइए दोस्तों, अब मैं आपको उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़ा बता दूं। ये अलग अलग रेंज में 3 साइजेस में हमारे पास उपलब्ध है, 2 इंच, 2.5 इंच और 3 इंच की जो साइज़ है। और ये फ्लो रेंज है इसकी, ये इसमें 12 से 30, 20 से 40 और 40 से 60 ये उसकी फ्लो रेंज है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के लिए एक मिनिमम फ्लो की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम फ्लो होना चाहिए जो अंदर एक घुमाव तैयार करे, अंदर एक भंवर तैयार कर सके। उसके नीचे वाले फ्लो में शायद ये घुमाव या भंवर अंदर इतनी सहजता से नहीं तैयार होगा, तो इसलिए ये मिनिमम फ्लो रखना बहुत ही जरूरी है। इसका जो नॉमिनल फ्लो हमने डिक्लेयर किया है, जो रेगुलरली ऑपरेशन में लगता है, वो है 25, 40 और 50 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर सहने की इसकी कैपेसिटी है। वैसे तो इससे ज़्यादा कह सकता है, क्योंकि हम लोग इसको जब टेस्ट करते हैं, जब हम लोग आपको बोलते हैं कि 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हम इसको टेस्ट करते हैं 12 किलोग्राम, 1.5 टाइम्स 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम इसको प्रेशर दे के टेस्ट करते हैं, और तब इसको 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अपने ड्रिप सिस्टम का प्रेशर कितना होता है 1.5 kg, स्प्रिंकलर सिस्टम का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है 2 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने कम प्रेशर में आपको सिस्टम चलानी होती है, लेकिन ये इससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर सहने की इसकी क्षमता है। और इसका वजन तो बहुत ही कम है दोस्तों, ये 7 किलो का है खाली, आप आराम से इसको उठा सकते हो, लगा सकते हो, पोर्टेबिलिटी आपको मिलती है। वजन कम है तो इसकी वजह से पाइपलाइन के ऊपर इसका वजन नहीं आता, तो 7 किलो का वजन है। ड्रेन की साइज़ भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, बड़ी है, 1 इंच का ड्रेन इसमें हम दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो कलेक्शन चैम्बर है, ये अंडाकृति जो कलेक्शन चैम्बर है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 10 लीटर की कैपेसिटी इसकी। फिर इसके अंदर होने वाला प्रेशर ड्रॉप, कि कोई भी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि अंदर पानी घूमता है तो एनर्जी खर्च हो जाती है उसके, पानी जब घूमता है तो इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जैन घूमर एक तो स्मूथ स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो होने की वजह से, प्लास्टिक का होने की वजह से, स्मूथ वॉल्स होने की वजह से, ये इसमें प्रेशर ड्रॉप आपको मेटल हाइड्रोसाइक्लोन की कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। लगभग रेगुलर मेटल हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में 0.6, 0.7 तक का प्रेशर ड्रॉप में होता है, जबकि आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें कम से कम प्रेशर ड्रॉप होता है। अब ये जैन घूमर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा है, तो लगभग जो भी पानी का स्रोत है जिसके अंदर मिट्टी आ रही है, जिसके अंदर रेत आ रही है, यहाँ पर आपको जैन घूमर इस्तेमाल करना है। आपकी टपक सिंचाई हो, आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो, या कोई भी सिस्टम हो जिसमें रेत आ रही है, मिट्टी आ रही है, आपका चाहे बोरवेल हो, बोरवेल बहुत बार गुजरात या बहुत सारी जगह पे सैंड बेरिंग बोरवेल होती है, मतलब मिट्टी या रेत बाहर खींचती है। फिर आपका कैनाल का पानी होता है जिसमें मिट्टी काफ़ी मात्रा में आती है, या फिर नदी का पानी होता है, या स्टोर्ड आप रिजर्वायर से पानी लेते हो, तो जिसमें भी जहाँ पर भी मिट्टी रेत आती है
वह जहाँ पर भी पानी में सेटल होने वाली कोई भी चीज़ आती है वो निकालने के लिए जैन घूमर का आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था जैन घूमर का जो गुण विशेषता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो घूमर, ये नाम भी हमने बहुत ही अनोखी तरीके से दिया है। घूमर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य संगीत है जिसमें महिलाएं नाच करती है, घूमती है और जिसकी वजह से एक घुमाव तैयार जो हो जाता है। तो जब वैसे ही ये जैन घूमर कोई नृत्य आविष्कार से कम नहीं है, इसके अंदर भी बहुत ही स्मूथली पानी घूमता है जिसकी वजह से हमने इसका नाम जैन घूमर रखा है। और एक जो बहुत ही प्रसिद्ध गीत भी है घूमर के बारे में, एक मूवी में एक 2-3 साल पहले आया था, वही गीत की धुन लेकिन गीत में शब्द हमारे हैं। ये मैं गीत आपको सुनाना चाहूँगा। तो आपने ये गाना सुना होगा कि घूमर 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 घूमे, घूमर घूमे रे, रेत पानी से बाहर निकले जब घूमर घूमर घूमे, टपक सिस्टम री आयु बढ़ जाए घूमर घूमर घूमे, क्योंकि पानी होवे साफ जब ये घूमर 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 घूमे, घूमर घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई सा, घूमर घूमे रे। तो जैन घूमर अपनाओ, अपनी लागत की पूरी कीमत पाओ। तो दोस्तों जैन घूमर ये आप इस्तेमाल करना ना भूलिए, क्योंकि ये घूमर 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 घूमे, घूमर घूमे रे। नमस्कार।